Students, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Students, we have completed exercise number 3.3 and today we will start exercise number 3.4. 3.3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ। 3.4 ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਆ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਾਂਸ। ਚਾਂਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਈਵੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਪਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆ ਟਰਮਸ ਆ ਬਿਟ ਮੋਰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਇਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਇਨ ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਇਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈੱਡ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਲ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਵਾ, ਕੋਇਨ ਦੀ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਹੈੱਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਈਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਈਵੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਈਵੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਇਨ ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਇਨ ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਹੈੱਡ ਆਵੇ। ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਟੇਲ। ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ। ਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਵਾ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈੱਡ ਕਿੰਨੀ? ਹਾਫ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਟੇਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ? ਹਾਫ। ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈੱਡ ਆਉਣ ਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਚਾਂਸਿਸ ਟੇਲ ਆਉਣ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਈ ਖੇਡਦੇ ਬੇਟਾ, ਡਾਈ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਲੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 1 ਡਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, 4 ਹੁੰਦੀਆਂ, 5 ਹੁੰਦੀਆਂ, 6 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਈ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਈ ਸੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਨੰਬਰ ਆਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਆ? ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਡਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 3 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 4 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 5 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 6 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, 6 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, 6 ਡਾਟਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈ ਸੁੱਟਾਂ ਅਤੇ 5 ਆਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਆ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, 6 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਬਟ 5 ਆਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ? 1। ਠੀਕ ਆ, 4 ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਵੀ 1/6। 6 ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 1/6। 3 ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 1/6। 2 ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 1/6। 1 ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 1/6। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟਕਮਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਟੋਟਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਸ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 52 ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੰਗ ਆਵੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਸੁੱਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਗ ਆਵੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 52। ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? 1। ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1/52। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ ਆਵੇ, ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡਸ ਆ? 52। ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਟ।
इट मीनस ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆ ਜਾਣੀ 2। ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਹੀ ਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ 2/52। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਊਟਕਮਸ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਊਟਕਮਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਓਵਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 61 'ਤੇ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 61 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਊਟਕਮਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ, events that have many possibilities can have probability between 0 and 1। ठीक है, कोई भी चीज़ की probability कड्डोगे ना, वो 0 तो लैके 1 दे विच होएगी। नंबर 1, किसी भी इवेंट की probability 0 तो लैके 1 दे विच होएगी। 0 जां उस तो वड्डी, 1 जां उस तो छोटी। ना 0 तो छोटी नैगेटिव जा सकती कदी ये, ना ही ये 1 तो वड्डी जा सकती है। तुसी किसी भी आ वेखो मैं उपर किन्ने कीते है ना, 1/2, इनू सॉल्व करोगे ना तो आंसर 0.5 आएगा। इनू सॉल्व करोगे 0.1 समथिंग आएगा। ठीक है, हरेक में तुसी सॉल्व करके वेखोगे ना, 0 तो वड्डा आएगा जां 0 आएगा तो 1 तो छोटा आएगा। 1 तो कभी भी प्रोबेबिलिटी एक्सटेंड नहीं होंगी। आ चीज़ फस्ट चीज़ ये नोट करनी। सैकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर का मतलब होंदा जिहड़ी होनी चीज़, सानू यकीन आ कि ये चीज़ होनी है। सानू पता वा हुण रात पई आ जां हुण दिन वा ते रात पैनी है। सानू पता सन ने ईस्ट चों निकलना ही निकलना वा। ठीक है, श्योर चीज़ां होंदियां जिहड़ियां उन्हां दी प्रोबेबिलिटी कितनी होंदी 1। कुछ चीज़ां होंदियां इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स, जिहड़ी चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। मैं कहनी मेरी लूडो वाली डाई दे उपर 8 बिंदियां 8 डॉट्स आ जाण, 8 नंबर आ जाए, इज़ इट पॉसीबल? नो। लूडो तो हुंदी उहदी डाई जिहड़ी हुंदी ओह हुंदी 6 नंबर्स तक आ, 8 आ ही नहीं सकता। सो जिहड़ी चीज़ पॉसीबल ही नहीं आ उहदा प्रोबेबिलिटी 0 हुंदी आ। ठीक है, आ 3 पॉइंट्स आ। सब तो पहला तुसी फॉर्मूला नोट करना। ठीक है, उस तो बाद तुसी ये दोवें पॉइंट्स नाल नोट करने आ। तिन्ने किन्नियां चीज़ां नोट करनियां तुसी, एक फॉर्मूला नोट करना, उस तो बाद ये तीनों पॉइंट्स नोट करने। क्लीयर है बेटा? फॉर्मूला प्लस ये तीनों पॉइंट्स। इस तो बाद असी अपनी एक्सरसाइज शुरू करांगे। ये जिहड़े तीनों पॉइंट्स वा ना, ये मल्टीपल चॉइस दे विच, फिलअप्स दे विच, है ना, ट्रू फॉल्स दे विच हर क्लास से तुहानूं आउंदे आ। सो इन्हां नूं अपने दिमाग 'च रखना वा। क्लीयर है बच्चों? सो हुण असी अपनी एक्सरसाइज शुरू करांगे। एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 वेखो। ये वेखो फस्ट क्वेश्चन हैगा
स्टेट वैदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन किंदा यकीनी तौर पर, कि यकीनी तौर पर वापरेगा। इम्पॉसिबल टू हैपन, हो ही नहीं सकता। ठीक है, मे हैपन, हो भी सकता तो नहीं भी हो सकता। 3 ऑप्शनस उन्होंने किया वा कि यकीनन तौर पर होवेगा, हो ही नहीं सकता, तो तीसरा हैगा हो भी सकता तो नहीं भी हो सकता। मे वर्ड आ गया। ठीक है, तुसी दसना जिवें फस्ट पार्ट हैगा 200 पीपल सिट इन अ मारुति कार। एक मारुति कार आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਜਣਾ ਬਹਿ ਜੇ। दसो की आंसर आएगा। सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल टू हैपन कि मे हैपन। 5 सीटड होंगी मारुति कार, कि उस 200 बंदा बह सकता। इम्पॉसिबल टू हैपन। ठीक है, फस्ट का फस्ट पार्ट का आंसर आ जाना इम्पॉसिबल टू हैपन। क्लीयर, फस्ट का आ जाना इम्पॉसिबल टू हैपन। सैकेंड पार्ट इहदा हैगा वा यू आर ओल्डर दैन यैसटरडे। उन्होंने कहा यू आर ओल्डर दैन यैसटरडे, तुसी कल नालों अज एक दिन वड्डे होए हो, जां तुसी जिन्नी उम्र तुहाडी अज वा कल नूं तुहाडी वधूगी एक दिन उम्र। यैस ऑफकोर्स सर्टेन टू हैपन, होना ही होना इदां। असी दिन बाय दिन ही वड्डे हुन्ने ना। सर्टेन टू हैपन। ठीक है, थर्ड पार्ट हैगा इट टॉस्ड कॉइन विल लैंड हैड्स अप। कोई कॉइन टॉस किया वा, उहदे उपर हैड आवे। हो सकता वा बट जरूरी नहीं हो सकता, टेल भी आ जाए। ठीक है, इहदा आ जाना मे हैपन। मे हैपन बट नॉट सर्टेन, जरूरी नहीं है बट हो सकता वा। ठीक है, मे आ गया। फोर्थ हैगा वा ए डाई वैन रोल्ड शैल लैंड अप 8। किसी डाई के उपर 8 आ जाए। इम्पॉसिबल टू हैपन। नैक्सट हैगा टमोरो विल बी अ क्लाउडी डे। कल बदल होएगा। मे हैपन, हो सकता वा बट नॉट सर्टेन, पर यकीनन तौर पर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, 6th हैगा इंडिया विल विन द नैक्सट सीरीज़। इंडिया अगली सीरीज़ जितेगी, हो सकता बट नॉट श्योर। ठीक है, मे हैपन बट नॉट सर्टेन। नैक्सट द नैक्सट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। कहते नैक्सट ट्रैफिक लाइट जिहड़ी आ वो ग्रीन होएगी। मे हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, ये साडा हो गया क्वेश्चन नंबर फस्ट। हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर सैकेंड। क्लीयर नहीं आ रही, एक मिनट बेटा। ये हो गया साडा क्वेश्चन नंबर फस्ट। हुण असीं करांगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सैकेंड। सैकेंड क्वेश्चन हैगा वा देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर्स 1 to 6 मार्कड ऑन दैम। किसी बॉक्स के विच 6 मार्बल्स पाए गए आ, हरेक नाम मार्बल के उपर नंबर लिखा होया वा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 मार्बल्स आ, पहले मार्बल ते 1 लिखिया, दूजे ते 2, तीसरे ते 3, चौथे ते 4, पंजवें ते 5, छेवें ते 6। ठीक है, 6 मार्बल्स पाए गए हैं। फस्ट पार्ट वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। कहते की प्रोबेबिलिटी आ कि जेड़ा मार्बल उहदे चों मैं चूज़ करा वो 5 नंबर होवे। सब तो पहलां तो सानू प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए वा, है ना। असी लिखांगे ईवेंट की है साडा मार्बल विद नंबर 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की आ, फॉर्मूला लिख देना असी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है, इत्थे टोटल आउटकम्स भी लिख लो बेटा। टोटल आउटकम्स किन्नियां वा, टोटल आउटकम्स का मतलब किन्ने मार्बल्स आ, 6 मार्बल्स आ। ईवेंट की है मेरा कि मार्बल विद नंबर 5 होवे। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स 6 आ। मैनू मेरी ईवेंट की प्रोबेबिलिटी की है 5 तो एक बारी आ सकता ने इन्हां चों एक बारी, तो ओवर टोटल किन्नियां आउटकम्स 6। ठीक है, फिर इस तरह का सैकेंड पार्ट का ईवेंट हैगा वा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इन मार्बल विद नंबर 2। ईवेंट इज़ मार्बल विद नंबर 2। टोटल आउटकम्स 6। फॉर्मूला लिख देना प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 2 भी एक बारी आ सकता, इत्थे फॉर्मूला कंप्लीट लिखना बेटा। ये भी कितनी बारी आ, 2 भी तो एक बारी आना ना 6 के विचों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हैगा देयर आर 2 टीम्स ए एंड बी। 2 टीम्स हैगियां वा ए एंड बी। ए कॉइन इज़ फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। कहते एक कॉइन नूं सुट्टिया जाता वा ये डिसाइड करने वास्ते कि किहड़ी टीम गेम स्टार्ट करूगी। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विल स्टार्ट। कहते की प्रोबेबिलिटी आ कि टीम ए स्टार्ट करूगी। वेखो बेटा जो कॉइन नूं टॉस करना वा, एक टीम ने हैड चूज़ करना, एक टीम ने टेल, है ना। सो उन्होंने कहा वा कि ए टीम जिहड़ी है गेम जिते, मतलब ए जो ए ने चाहया, जे हैड चाहया हैड आवे, जे टेल चाहे तो टेल आवे। उहदी प्रोबेबिलिटी की हैड चाहे तो उहदी भी प्रोबेबिलिटी हाफ आ, टेल चाहे तो उहदी भी प्रोबेबिलिटी हाफ आ, है ना। सो किन्ने चांसिस हैगे आ, हाफ चांसिस हैगे आ। क्लीयर, लिखो ईवेंट की हैगा वा ईवेंट हैगा वा टॉसिंग ए कॉइन। ईवेंट इज़ टॉसिंग ए कॉइन। टोटल आउटकम्स किन्नियां दियां, जां हैड जां टेल, 2 आ। ठीक है, ईवेंट हैगा वा इज़ टॉसिंग ए कॉइन। प्रोबेबिलिटी कादी, टीम ए विल स्टार्ट। इत्थे आ रहन दो ईवेंट, क्योंकि मैं इत्थे टीम की खेडण की उन्होंने ये नहीं कहा कि हैड आवे जां टेल, उन्होंने जस्ट कहा कि टीम जिहड़ी आ ए टीम शुरू करे। इट मीनस मैनूं काहदी प्रोबेबिलिटी चाहिदी आ, टीम ए विल स्टार्ट। मैं इत्थे ईवेंट की जगह ते पूरी लाइन लिखती कि मैनूं की चीज़ चाहिदी, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आ जाना फॉर्मूला, फिर वही आ जाना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लो या टोटल आउटकम्स। हाँ जी, 1/2 हैड आउण दे भी चांसिस 1 ही आ, 2 दे विचों ते टेल आउण दे भी। सो सैकेंड क्वेश्चन का आंसर आ जाना, थर्ड का सॉरी 1/2। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4th। ए बैग कंटेन्स 3 रैड 7 ग्रीन बॉल्स। किसी बैग दे विच 3 रैड ते 7 ग्रीन बॉल्स आ। टोटल किन्नियां हो गईयां, टोटल बॉल्स 3 + 7 10। 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। कहते उस बैग दे विचों एक बॉल कड्ढी गई आ, 3 रैड ते 7 ग्रीन पाईयां गईयां, तो फिर एक बॉल कड्ढी गई आ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग अ रैड बॉल। फस्ट पार्ट हैगा वा कि रैड बॉल की प्रोबेबिलिटी की हैगी आ। ठीक है, असी लिखना फस्ट पार्ट टोटल बॉल्स इन्नियां, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग अ रैड बॉल। रैड बॉल्स किन्नियां वा,
3 है ना, 3 है ना। सो 3 रैड बॉल्स वा 3 ओवर टोटल कितनी आ 10। रैड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जानी 3 ओवर 10। इसी तरह सैकेंड पार्ट टोटल बॉल्स 10। मैनू प्रोबेबिलिटी काहदी चाहिए है, एक ग्रीन बॉल कि ग्रीन बॉल होवे, गैटिंग अ ग्रीन बॉल। ओ सॉरी बेटा, तो फॉर्मूला भी लिखना सीगा, इत्थे पहला फॉर्मूला लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल फॉर्मूला मस्ट वा बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, फॉर्मूला लिख के फिर नैक्सट लिखना, इत्थे लिखना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल की है जिन्नियां ग्रीन है, तो ग्रीन कितनियां बॉल्स आ 7 ओवर 10, ठीक है। ये हो गया साडा क्वेश्चन नंबर 4। उस तो अगे दे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वा, हुणे जो मैं तुहानूं पढ़ाया वा, वेखो इम्पॉसीबल ईवेंट इहदी कितनी हुंदी आ 0, सैकेंड आ जाना। 6th क्वेश्चन वेखो इदा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलैक्टिंग लैटर G फ्रॉम द वर्ड गर्ल। गर्ल G की प्रोबेबिलिटी कड्ढनी कितनी आऊगी, टोटल किन्ने आ 4, तो G कितनी बारी आ रहा 1 बारी, कितना आंसर आ जाना इहदा 1 ओवर 4। सो थर्ड पार्ट इहदा टिक हो जाना, ठीक है। सो इस तरीके नाल बेटा 7th 8th वा जिहड़े इहदे MCQ वो तुसीं करने आ। उस तो बाद ना वट वी हैव डिस्कस्ड जिहड़ा वा इहदे हैगी आ 15 पॉइंट्स। केयरफुली तुसीं ये 15 पॉइंट्स ही पढ़ने आ, बिकॉज सारे शॉर्ट क्वेश्चन सानूं इहदे विचों ही मिलने आ, तो शॉर्ट क्वेश्चन आउंदे ही आउंदे पेपर्स दे विच, ठीक आ। सो केयरफुली तुसीं ये 15 पॉइंट पढ़ने आ, तो बेटा इनू समझना वा। अगर कोई मुश्किल होएगी दैन तुसीं पुछ सकदे हो। सो इहदे नाल साडी ये एक्सरसाइज जिहड़ी वो कंप्लीट हुंदी आ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।